Hi friends, good morning to all of you. We are going to learn here smart English. Smart English is what? Some sentences which give you little different meaning. You enjoy the meaning and it gives you little different. Okay. And you feel yourself you're more smart, or the people who speaks this language, they look smart, they look elite. Okay. So let's learn all those type of some sentences which we use in day-to-day life. Can I catch your name please? Very simple, means may I know your name? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? Shall I push off? Shall I push off means क्या मैं जा सकता हूँ? Shall I push off means क्या मैं जा सकता हूँ? What's up? क्या चल रहा है? What are you up to? आप क्या करते हो? What are you up to? आप क्या करते हो? I'm cool. मैं खुश हूँ. मैं ठंडा हूँ नहीं. I'm cool. मैं खुश हूँ. It's simple. We know, everybody knows that. You have put on too much. You have put on too much. तुमने बहुत ज़्यादा weight gain कर लिया है. You have put on too much. तुमने बहुत ज़्यादा weight gain कर लिया है. You have put on too much. Remember very well. That work is in the pipe. That work is in the pipe. It means यह काम बस होने ही वाला है. That work is in the pipe means यह काम बस होने ही वाला है. This is a wake up call for you. This is a wake up call for you. Means अब तुम्हें सक्रिय हो जाने की जरूरत है या अब तुम्हें सक्रिय रहना चाहिए. I'm handicapped with finance. मैं पैसे से मजबूर हूँ. I'm handicapped with finance means मैं पैसों से मजबूर हूँ. You shall have to face the music. You shall have to face the music. आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. This is the meaning of the sentence, my dear. You shall have to face the music. अब तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. Now some more sentences we are going to learn here. I'm feeling the heat. I'm feeling the heat means मुझे समस्या का एहसास हो रहा है. मुझे समस्या का एहसास हो रहा है. You are passing on hot potato to me. You are passing on hot potato to me means तुम अपनी समस्या मुझे दे रहे हो. तुम अपनी समस्या मुझे दे रहे हो. It is on the cards. It is on the cards means मैं यह करने वाला हूँ. मैं यह करने वाला हूँ. You cannot stop me. Stick to gums. Stick to basics means एक जैसा काम करते रहो. Stick to gums या stick to basics means एक जैसा काम करते रहो. Don't come to the fair. I will not be able to serve you. Don't come to the fair. I will not be able to serve you. सबके आखिर में मत आना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा. या सबसे अंत में आप मत आना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा. He is down and out means वह खत्म हो चुका है. He is down and out. वह खत्म हो चुका है. They are down and out. वे लोग खत्म हो चुके हैं. Congress is down and out. कांग्रेस खत्म हो चुकी है. Yes, and anywhere you can make the sentence here. India are selling through. भारत जीत के करीब है. India are selling through. SAILING. Selling through means जीत के करीब. India are selling through. भारत जीत के करीब है. He is a hard nut to crack. He is a hard nut to crack. उसे समझाना बहुत मुश्किल है. He is a hard nut to crack means उसे समझाना बहुत मुश्किल है. तुम कहाँ रहते हो? Where do you put up? तुम कहाँ रहते हो? Where do you put up? Your harsh words are uncalled for. Your harsh words are uncalled for. तुम्हारे कठोर शब्दों की जरूरत नहीं है. तुम्हारे कठोर शब्दों की जरूरत नहीं है. Your harsh words are uncalled for. Now we are going to learn some more sentences. He is on the edge. वह बस खत्म होने ही वाला है. He is on the edge. वह बस खत्म होने ही वाला है. I'm smelling a rat. I'm smelling a rat. Means मुझे शक हो रहा है. I'm smelling a rat means मुझे शक हो रहा है. My offer for the post of GM sent to Mr. Verma over the moon. मेरा ऑफर GM के प्रस्ताव का वर्मा जी को बेहद खुश कर दिया.
यू हैव गॉट अ बिग माउथ मीन्स तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो. यू हैव गॉट अ बिग माउथ मीन्स तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो या कर रहे हो. नेवर ग्रीज द palms ऑफ एनी ऑफिशियल. नेवर ग्रीज द palms ऑफ एनी ऑफिशियल. कभी किसी अधिकारी को रिश्वत मत देना. कभी किसी अधिकारी को रिश्वत मत देना. नेवर ग्रीज द palms ऑफ एनी ऑफिशियल्स. एंड सिक्सेस एंड सेवन्स. मैं अस्त व्यस्तता में हूं. मैं अस्त व्यस्तता में हूं. आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद स्क्रैच. मैंने अपना बिजनेस स्क्रैच से शुरू किया या शून्य से शुरू किया. नाउअडेज Mr. Virat Kohli is on songs. Nowadays, Mr. Virat Kohli is on songs. आजकल विराट कोहली बहुत खुश हैं. I have done the spade work. मैंने बुनियादी काम कर लिया. I have done a spade work means मैंने बुनियादी काम कर लिया है. Save your energy for D-Day means अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण काम के लिए बचा कर रखो. अपने ऊर्जा को महत्वपूर्ण काम के लिए बचा कर रखो. सेव योर एनर्जी फॉर द डे. सम मोर sentences we will learn here. You will have to deliver the goods. You will have to deliver the goods. तुम्हें लोगों की अपेक्षा के अनुसार काम करना होगा. तुम्हें लोगों की अपेक्षा के अनुसार काम करना होगा. He will have to fall in line with me. He will have to fall in line with me. उसे मुझसे सहमत होना पड़ेगा. उसे मुझसे सहमत होना पड़ेगा. नाउ शैल वी कॉल इट अ डे. क्या अब हम जाएं? नाउ शैल वी कॉल इट अ डे. क्या अब हम जाएं? आई वॉज टीजिंग वाटर्स. सॉरी, आई वॉज टेस्टिंग वाटर्स. मैं बात की गहराई को जांच रहा था. आई वॉज टेस्टिंग वाटर्स. मैं बात की गहराई को जांच रहा था. दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. यह तो केवल शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है. दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. यह तो केवल शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है. आई टेक बीटल लीफ वंस इन अ ब्लू मून. मैं पान कभी कभार खाता हूँ. आई टेक बीटल लीफ, BETL, बीटल लीफ मीन्स पान के पत्ते. once in a blue moon mean blue moon means कभी कभार. I take bitter leaf once in a blue moon means मैं कभी कभार पान खाता हूँ. Nowadays सचिन is going great guns. आजकल सचिन बहुत अच्छा खेल रहा है. There is a difference between chalk and the cheese. साधारण और असाधारण चीजों में फर्क होता है. There is a difference between chalk and cheese. Don't press panic button. पैनिक बटन को मत प्रेस करो. डोंट प्रेस पैनिक बटन. घबराहट को न फैलाएं. मिस्टर वर्मा इज अ लूज कैनन. मिस्टर वर्मा पता नहीं कब और किस पर गुस्सा कर बैठे. मिस्टर वर्मा का पता नहीं कब और किस पर गुस्सा कर बैठे. आई वॉज टेस्टिंग यू. मैं आपको टेस्ट कर रहा था. आई वॉज टेस्टिंग यू. आई वॉज टेस्टिंग वाटर्स. मैं तो पानी की गहराई नाप रहा था या मैं आपकी गहराई नाप रहा था. इफ यू आर सेइंग इन सेंस ऑफ आई वॉज टेस्टिंग यू. नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम मोर सेंटेंसेस. कैन यू मेक इट एट 9 o'clock? कैन यू मेक इट एट 9 o'clock? क्या आप इसे 9 o'clock रख सकते हैं? नाउ डोंट थ्रो अ स्पैनिंग. अब काम को मत बिगाड़ो. सॉरी, नाउ डोंट थ्रो अ स्पैनर. अब काम को मत बिगाड़ो. नाउ डोंट थ्रो अ स्पैनर. अब काम को मत बिगाड़ो. मिस्टर वर्मा हैज लेफ्ट फॉर द डे. मिस्टर वर्मा ने अब नहीं आएंगे, वो चले गए हैं. मिस्टर वर्मा हैज लेफ्ट फॉर द डे मीन्स मिस्टर वर्मा हैज गॉन. यू शुड गिव 100% टू वॉट यू आर डूइंग. तुम्हें हर एक कार्य जो अपने हाथ में लेते हो उसको 100% देना चाहिए. यू शुड गिव 100% टू वॉट यू आर डूइंग. यू शुड फॉलो द सिस्टम रिलीजियसली. You should follow the system religiously. तुम्हें सिस्टम का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा. There is a win-win situation for Mr. Mohan. There is a win-win situation for Mr. Mohan. Mr. Mohan के लिए win-win situation है. You are beating my brain. तुम मेरा दिमाग खा रहे हो. तुम मुझे मानसिक कष्ट दे रहे हो. I want everything in black and white. मुझे सब कुछ, हर एक चीज लिखित में चाहिए.
मुझे हर एक चीज लिखत में चाहिए. I want everything in black and white. I know all the ins and outs. मुझे सारी चीजों की खबर है. I know all the ins and outs. मुझे सारी चीजों की खबर है. One has to take rough with the smooth. One has to take roughs with the smooth. अच्छाई के साथ अक्सर बुराई भी रहती है. अच्छाई के साथ अक्सर बुराई भी रहती है. One has to take rough with the smooth. One has to take rough with the smooth means अच्छाई के साथ अक्सर बुराई भी रहती है. Thank you so much. I hope you like this lecture or you like these sentences, smart English sentences, and if you like it and if you want the next part of this, then please share your comments, okay, by which I can give you some more sentences which can improve your English in most better way. Thank you so much. Love you all. Bye bye.